ইরান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ই হঠাৎ চট্টগ্রাম বন্দরে ইরানের মিত্র রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু কেন? তবে কি বাংলাদেশে হচ্ছে যুদ্ধের অংশ? রাশিয়ার জাহাজের আগমনের খবর শুনে এমন সব প্রশ্নই করছেন নেটিজেনেরা। বিশ্বজুড়ে ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনার এই চরম মুহূর্তে মঙ্গলবার আইএসপিআর এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যখন জানানো হলো যে রাশিয়ার দুটি শক্তিশালী রণতরী क्या बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा है और ईरान ने आज एक बांग्लादेश से डिटेल्स भी ले ली है। स्पेशली ईरान ने बांग्लादेश से डिटेल क्यों ली और वारशिप रशिया की बड़ी जो वारशिप हैं और जहाज हैं उसमें एक का नाम सर्वेचनी और एक का नाम रिजिक यानी दो ये वारशिप चिट्टागोंग पोर्ट पर आई हैं। लोग परेशान हैं कि भाई ये रूस की वारशिप बांग्लादेश के पानियों में क्या कर रही है, क्योंकि जो रशिया है वो एंटी अमेरिका है, इजराइल है और प्रो ईरान है। दोस्तों ये जो खबर है इसने तहलका मचा के रख दिया है। अबनाए हुर्मस से बांग्लादेश की जो जॉय जतरा शिप है जिसके अंदर कोयला है, और दोस्तों आपको बताएं बाकी जो 3 से 4 शिप हैं जो बांग्लादेश में आना चाहती हैं उसकी डिटेल ली गई है। इसके जो डॉट्स हैं वो मिल रहे हैं। वजह क्या है? लोग परेशान हैं, लोगों को टेंशन, बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी हिंदुस्तान वाले जल रहे हैं, सड़ रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में रशिया की शिप क्या करने आई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जॉय जतरा जो बांग्लादेश की शिप अबनाए हुर्मस यूएई में फंसी हुई है उसके आने का वक्त हो चुका है। बाकी और 2-3 जहाज भी हैं बांग्लादेश के, वो भी अब बहुत जल्द आप देखेंगे बांग्लादेश के पानियों में आ जाएंगे। ऑयल गैस जो जरूरत होगी ये कोयला वगैरह की लेने की, वो सब चीजें जो भी सामान होगा उसमें वो आ जाएगा। क्योंकि ईरान ने स्पेशली डिटेल मांग ली है बांग्लादेश से कि भाई हमें डिटेल बताएं, हम फिर उसको इजाजत देते हैं, वो रेस्क्यू करते हैं, सेफ एग्जिट हो जाएगा, फिर आप उनको लेकर आ जाएं। ये तो अच्छी डेवलपमेंट है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक प्यार है, प्रेम है, अच्छे ताल्लुकात हैं। तो दूसरी तरफ रशिया की 2 वारशिप बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पर देखी गई हैं। उनका बड़ा अच्छा वार्म वेलकम किया गया है। लेकिन कुछ हमारे इंडियन दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई क्यों, क्या आप ईरान का साथ देने जा रहे हो, क्या आप अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो। इसमें अब जो बांग्लादेश की नेवी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट दिया है वो भी सुनने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 ইরান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ই হঠাৎ চট্টগ্রাম বন্দরে ইরানের মিত্র রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু কেন? তবে কি বাংলাদেশে হচ্ছে যুদ্ধের অংশ? রাশিয়ার জাহাজের আগমনের খবর শুনে এমন সব প্রশ্নই করছেন নেটিজেনেরা। বিশ্বজুড়ে ভূ রাজনৈতিক উত্তেজনার এই চরম মুহূর্তে মঙ্গলবার আইএসপিআর এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যখন জানানো হলো যে রাশিয়ার দুটি শক্তিশালী রণতরী রেস্কি ও সোভারচেনি চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করেছে, তখন জনমনে তুঙ্গে উঠায় স্বাভাবিক। নোভা এলইডি টিভি, ঝকঝকে ছবি, নিখুঁত শব্দ, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। নোভা মানে সঠিক মান, নিশ্চিত সেবা। মধ্যপ্রাচ্যে যখন পরাশক্তিগুলোর প্রকাশ্যে যুদ্ধ চলছে ঠিক তখনই দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত জলসীমা বঙ্গোপসাগরে রুশ যুদ্ধজাহাজের এই আকস্মিক উপস্থিতি পশ্চিমা বলয়েও এক ধরনের স্নায়বিক চাপ তৈরি করে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার এই উত্তেজনার বিপরীতে আসল সত্য হলো এটি বাংলাদেশকে কোনো যুদ্ধে জড়ানোর মহড়া নয়, বরং এটি 4 দিনের একটি নিছক শুভেচ্ছা সফর। বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের পরপরই বনৌজা ওমর ফারুক তাদের আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানায়। এই সফরের রুটিন বেশ সাধারণ। ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার উপরাষ্ট্রদূত সহ রুশ জাহাজের অধিনায়করা চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল কমান্ডার এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। সামরিক এই কূটনীতির পিছনে রয়েছে গভীর এক ঐতিহাসিক যোগসূত্র। 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের পরপরই চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইন মুক্ত করতে গিয়ে প্রাণ হারানো রুশ নাবিক ইউভি রেডকিনের সমাধিস্থল রেডকিন পয়েন্টে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন বর্তমান রুশ নাবিকরা।
পাশাপাশি চলবে দুই দেশের নৌবাহিনীর পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ ঘাঁটির পারস্পরিক পরিদর্শন। সুতরাং নেটিজেনদের ছড়ানো যুদ্ধের আতঙ্ক স্রেফ ভিত্তিহীন ও আবেগপ্রসূত। আগামী ২৭ মার্চ জাহাজ দুটি বাংলাদেশের জলসীমা ত্যাগ করবে। বৈশ্বিক মেরুকরণের এই উত্তপ্ত সময়ে এটি মূলত ঢাকা ও মস্কোর মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার একটি নিখাদ সামরিক শিষ্টাচার মাত্র। সামিউল জয়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब सवर चुनी और जो रिजकी, ये दो वॉरशिप हैं जो बांग्लादेश ढाका ये चिटागोंग पोर्ट पर आई हैं और उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी किया गया है। इसमें जो बांग्लादेश नेवी के सरबराह हैं, नेवल चीफ हैं, नौबानी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि देखें हमारे जो रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, रिश्ता है, वो बहुत पुराना है और बड़े अच्छे हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। और उनकी जो ये जहाज़ ये वारशिप आई हैं जिसका नाम सवरचनी और रेज़की है दोस्तों, ये दो वारशिप हैं। वो कह रहे हैं कि ये मामूल का एक हिस्सा है और नेवल एक्सरसाइज होती रहती हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं एक दूसरे मुल्क को और हम नेवल एक्सरसाइज भी करते रहते हैं जब ज़रूरत पड़े। इस ज़िमन में, इस सूरत में ये बांग्लादेश में आई हैं, यानी चिटागोंग पोर्ट में आई हैं। और दूसरी तरफ जो ईरान ने, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ईरान ने डिटेल्स मांगी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, एक और खबर भी है कि पाकिस्तान में भी चाइना की वारशिप आई है। जी हाँ, कराची पोर्ट के पास चाइना की जो वारशिप है वो पाकिस्तान में आई है। इसको लेकर भी इंडियन मीडिया काफी वावेला मचा रहा है, शोर मचा रहा है। तो दूसरी तरफ चिटागोंग में आपने देखा कि जो रशियन वारशिप है वो आ गई है। वो कह रहे हैं कि क्या आप ईरान का साथ देंगे, क्या इजराइल के, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? और भाई ऐसा नहीं है, आप जरा सुकून करें। आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। असल में ये आइसोलेट हो गया, हिंदुस्तान अकेला रह गया इस रीजन के अंदर। उसके जो नेबर कंट्री हैं वो उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें कि जो सालसी के लिए, मीडिएटर के लिए अब जो फैसिलिटेट कौन सा मुल्क है, यानी पाकिस्तान दो मुल्कों के दरमियान अगर सुलह करवा रहा है तो कितनी अच्छी बात है यार। यानी पाकिस्तान को अप्रोच किया जा रहा है दुनिया भर में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इस्लामाबाद में अब कुछ मुज़ाकरात होंगे और जिसमें ईरान और यूएसए, इजराइल की कहा जा रहा है कि यूएसए और ईरान के साथ जो डील है वो पाकिस्तान करवाएगा। ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। यही वजह है कि जो इंडियन है वो जले भूगे बड़े हैं कि भाई ये क्या हो गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के? आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।